on the same story. Now the Congress party has reacted to the liquor license row. It has said that it is confident that the Delhi Deputy CM Manish Sisodia will get jail in the case. Let's listen in to what Anil Chaudhary has to say. खेल यही है कि ये पूरी तरह से जब संक्रमण काल में पूरा देश और दिल्ली भुगत रही थी तो अरविंद केजरीवाल शराब माफियाओं के साथ बैठक कर रहे थे। ये बात जब हम पे पहुंची तो हमने लगातार प्रेस वार्ता और लिखित रूप में कंप्लेंट दी। धन्यवाद देता हूं, देर आए दुरुस्त आए। ये जांच पहले होनी चाहिए थी। अब इस जांच में परतें खुलेंगी। पंजाब चुनाव, लेन देन, सत्येंद्र जैन जो हवाला का व्यापार करता है, क्या पैसा उगाने का काम दूसरे मंत्री करते थे? ये भी एक जांच का विषय होगा। भगत सिंह के नाम पर राजनीति करना, कट्टर वर्ड यूज करना, सर्टिफिकेट देना, भगत सिंह का नाम का दुरुपयोग करना, राष्ट्र से माफी मांगे। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फंदे को चूमा था। अरविंद ने 21 साल में दारू पीने का अधिकार दे दिया। क्या भगत सिंह ये कल्पना कर सकते हैं? तो राष्ट्र से माफी मांगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सिसोदिया अकेले नहीं, केजरीवाल को साथ लेकर के जेल जाएगा। All right, so we just heard the Delhi Congress chief Anil Chaudhary taking pot shots at the Aam Aadmi Party government in Delhi, also slamming the government for having introduced liquor for all at the age of 21 in the national capital, saying that Congress will have to pay for joining hands with the liquor mafia. For more, let's also get in a sense of perspective from our political editor Pallavi Ghosh, who's joining me on the phone line. Pallavi, of course, with Congress also now vociferously speaking up, we can see the chorus is growing further along with the BJP. Having said that, we know that the Congress was equally vehement in opposing the new liquor policy since November last year, in fact. In fact, what the Congress has always criticized is the fact that when there are problems, infrastructural problems, when there are COVID concerns, post-COVID recovery is required in terms of infrastructure facilities, the Aam Aadmi Party is not interested in actually addressing these concerns. The excise policy only fills up the coffers of the Delhi government. The money is, of course, not used for the benefit of the people. That's one reason. The second thing is, politically speaking, in this case, if the BJP and the Congress are speaking in one voice, is because both of them are big stakeholders as far as the Delhi politics goes. We know, for example, the Congress has been completely wiped out of Delhi politics, and therefore they would always want to relentlessly attack Aam Aadmi Party, not just in the context of Delhi, but also because the elections elsewhere. So projecting Aam Aadmi Party as being a corrupt party, shielding the corrupt, that suits and helps their narrative, whether it's in Gujarat, Himachal, because whenever there's a straight BJP-Congress fight, Aam Aadmi Party definitely ends up hurting the Congress vote. Absolutely, it does. And as Pallavi rightly mentioned, that elections also tend to work out a strategy as far as the current controversy is concerned. Many thanks, Pallavi, for bringing in all those details. And with that, let's also listen into some political reactions. बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ। देखिए, भाजपाइयों को ड्रामा करने से तो कोई रोक नहीं सकता। रोज कोई ना कोई ड्रामा करेंगे। मूल बात यह है कि दिल्ली का केजरीवाल मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। फ्री शिक्षा का मॉडल, फ्री स्वास्थ्य का मॉडल, फ्री बिजली, फ्री पानी का मॉडल। हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। तो ऐसे मनगढ़ंत झूठे आरोप आप लगाते रहिए। जिस पॉलिसी को लेकर ड्रामा कर रहे हैं भाजपाई, इससे 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है दिल्ली सरकार को। हम अपना काम कर रहे हैं, रोकना उनको है। ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, दिल्ली पुलिस उनके पास है, सारी एजेंसियां उनके पास है। रोज गिरफ्तार करके जेल में डालें। उनको काम थोड़ी करना है इस देश के लिए। उनको कोई काम नहीं करना है इस देश के लिए। उनको सिर्फ मुकदमे लिख के जेल में डालना है। आगे की रणनीति कैसे रहने वाली है? किस तरीके से इस चीज को आप आगे ले जाएंगे पूरे सिलसिले को? अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, जिस तरह से उन्होंने शराब की नई पॉलिसी में जो भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया है, और उसके मुख्य कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया हैं जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी तक ये आंदोलन सड़कों पर जारी रहेगा। नई शराब नीति में जिस तरह से शराब के माफिया को फेवर दिया गया, पहले हम लोगों ने नई शराब नीति का विरोध किया क्योंकि उन्होंने 250 शराब की दुकानों से 1000 कर दी। गली मोहल्ले में मंदिर, स्कूलों के पास खोलने की अनुमति दे दी। जो 21 ड्राई डे की संख्या थी उसको घटाकर 3 कर दिया। शराब विक्रेताओं का जो कमीशन है वो 2.5% से बढ़ा के 12.5% कर दिया। ये सब उन्होंने नई शराब पॉलिसी में किया।
देखिए, जो सीबीआई जांच एलजी साहब ने ऑर्डर करी है एक्साइज पॉलिसी में, उसमें उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रोल पे, दिल्ली सरकार पे, आम आदमी पार्टी पे, उसके मंत्रियों पे, नेताओं पे, विधायकों पे केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा केस होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 7 साल में तकरीबन 150 केस अलग अलग एजेंसी से आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार पर 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां सिद्ध नहीं कर पाई हैं। तो कर लें इस मामले में भी सीबीआई जांच। पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल जी, दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया, शराब माफिया को माला माल कर दिया, गरीब आपदा के समय दिल्ली छोड़कर जा रहा था और आपकी सरकार उस समय भी शराब माफिया को धन धन कराने की बात कर रही थी। एलजी महोदय ने जो होम अफेयर्स को कहा है कि सीबीआई जांच हो, इसमें बहुत ताकत है, बहुत तथ्य है, बहुत सत्य है, और आपके नाक तले भ्रष्टाचार हुआ और उसके बावजूद आपके भ्रष्ट मंत्री बने हुए। इनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए और आप जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। And that's all we have for you in this newscast. Thank you so much for watching. News and updates continue on the other side.